છતાં આત્મજ્ઞાન થયું નથી તે વર્ણવી સદગુરુ તથા તેની આજ્ઞાનું સર્વાંગ પાલન વિના કરેલા સર્વ સાધનો ઉલટા બંધનરૂપ થયા એમ કહ્યું છે. સંસારથી વૈરાગ્ય પામેલા અને મોક્ષાભિલાષી એવા શિષ્યને શ્રી સદગુરુ સત્ય સુધાનું દર્શન કરાવે છે. અમૃત રસ પાનની આરાધના કરતા શિષ્યના હૃદયમાં શ્રી સદગુરુ પ્રત્યે ખૂબ પ્રેમ જાગે છે. પરમ કૃપાળુ યોગેન્દ્ર શ્રીમદ રાજચંદ્રની અમૃત પ્રાપ્તિ માટેની અમૃત વાણીનો ઉદ્ગાર અહીં સંભળાય છે. मुनि त्याग विराग अथाग गयो, मुनि त्याग विराग अथाग गयो। वनवास लियो मुख मोल रहो, दृढ़ आसन पर मन लगाए दियो, दृढ़ आसन पर मन लगाए दियो। पूर्ण निरोध स्वबोध कियो, हठ जोग प्रयोग सुतार भयो। जप भेद जपे तब त्यों ही तपे, गुर से ही उदासी लगी सब पे, गुर से ही उदासी लगी सब पे। वह साधन बार अनंत कियो, तदपि कछु हाथ हजू न करो, तदपि कछु हाथ हजू न करो। अब क्यों न विचारत है मन से, कछु और रहा उन साधन से। बिन सद्गुरु कोय न भेद रहे, मुख आगल है कह बात कहे, मुख आगल है कह बात कहे। वह बात रही सुगुरु गम की, वह बात रही सुगुरु गम की। पल में प्रगटे मुख आगल से, जब सद्गुरु चरण सुप्रेम बसे, जब सद्गुरु चरण सुप्रेम बसे। धन से सबसे गुरुदेव की आन स्वात्म बसे, तब कारज सिद्ध बने अपनो, रस अमृत पावहि प्रेम घनो, रस अमृत पावहि प्रेम घनो। चतुरांगुल है नग से मिल है, चतुरांगुल है नग से मिल है। रस देव निरंजन को पिवहि, गही जोग जुगो जुग सो जीवहि, गही जोग जुगो जुग सो जीवहि। पर प्रेम प्रवाह बढ़े प्रभु से, सब आगम भेद
सूर बसे, वह केवल को निज ज्ञानी कहे, निज को अनुभव बतलाई दिए, निज को अनुभव बतलाई दिए, निज को अनुभव बतलाई दिए, निज को अनुभव बतलाई दिए। જય જિનેન્દ્ર. જ્યાં સમય માત્ર પણ રહેવાની પોતાની ઈચ્છા નથી, એવા વ્યવહાર પ્રપંચ. Jai Jinendra. We are going. So today is October 19, 2020, Monday, and we are continuing our discussion on Atma Siddhi Shastra. We are on the stanza number 7, so we'll do Mangalacharan first. Om Namo Loe Sarvatrikavarti Aryantanam. Om Namo Loe Sarvatrikavarti Siddhanam. Om Namo Loe Sarvatrikavarti Ayaryanam. Om Namo Loe Sarvatrikavarti Uvajjayanam. Om Namo Loe Sarvatrikavarti Savanam. Omkaram Bindu Sanyuktam Nityam Dhayanti Yoginam Kamadam Moksadam Chaiva Omkaraya Namo Namo. Namah Samay Saraya Swanubhutya Chakasate Chit Sabhavaya Bhavaya Sarva Bhavantarachide Ajnana Timirandanam Gnana Anjana Salakaya Chaksurunmiritam Yena Tasmai Sri Gurave Namah. Tirthankaro Jagatana Jayvantavarto Omkaranada Jinano Jayvantavarto Jinana Samo Sarana Sau Jayvantavarto Netirthachara Jagama Jayvantavarto Dhruva Achalane Anupama Gati Pamel Sarve Siddhane Vandi Kaho Sutta Kevali Bhasita Asamaya Prabhrata Are Ananta Ananta Bhava Bedati Bhareli Bhali Ananta Ananta Naya Niksepe Vyakhyani Che Sakala Jagata Hita Karini Harini Moha Tarini Bhavabdi Moksha Charini Pramani Che Upama Apyani Jene Tamara Khavite Vyartha Apavati Nijamati Mapai Memani Che Aho Raja Chandra Bala Khyala Nathi Pamataye Jineswar Tani Vani Jani Tene Jani Che Guru Raj Tani Vani Jani Tene Jani Che. Om Namah Siddhebhyo. Om Namah Siddhebhyo. Om Sri Sudatmane Namah. Jai Jinendra. Again, today is October 19, 2020, and we are continuing our Monday. We are continuing our Atma Siddhi class. तो आत्मा सिद्धि क्लास में हमारी 7वीं गाथा चल रही है. तो विदाउट फर्दर डिले आई विल ब्रिंग द स्लाइड और बाद में देखते हैं क्या आता है उसमें. सबसे पहले हम 7वीं गाथा को पढ़ लेते हैं और बाद में आगे बढ़ते हैं वहां से. त्याग विराग नचित मान, हाय नसेने ज्ञान, हटके त्याग विराग मान, तो हुए निज भान. यह कितनी अच्छी तरह से बात श्रीमद जी ने यहाँ बताई है कि जब तू कोई भी कार्य करता है तो तुझे आत्मा की अनुभूति की तरफ जाना है, सम्यक दर्शन की तरफ जाना है. तो थोड़ा सा कोई प्री रेक्विजिट होना चाहिए.
थोड़ी तेरी पात्रता भी होनी चाहिए। तो त्याग और वैराग्य है तेरे में है सच्चे अर्थ में त्याग और वैराग्य तेरे में है, तो वो जीव को ज्ञान की प्राप्ति का अवसर हो सकता है। त्याग विरागन चित्मा थाने तेने ज्ञान मीन्स जिसको त्याग और वैराग्य जिसने किया है, तो उसकी पात्रता हुई तो उसको ज्ञान होता है। त्याग विराग नहीं होता है तो वो ज्ञान की प्राप्ति की योग्यता भी उसको नहीं है। मगर जो जीव त्याग वैराग्य में ही अपना सर्वस्व मान लेता है, बस मैंने अच्छा कार्य के लिया, बस अच्छा कर, तो उसको आत्मा की अनुभूति नहीं होती है। यानी कि पात्रता के लिए त्याग वैराग्य का एक स्टॉप बताया है और वहां से तुझे आगे जाने का है। मुझे जाना है न्यूयॉर्क, फिनिक्स से न्यूयॉर्क जाना है, शिकागो बीच में आएगा, मुझे प्लेन बदलना पड़ेगा, मगर वहां पर ही मैंने बोला बस मेरा कार्य हो गया, तो तू आधे रास्ते पर है, अभी तू कंप्लीट तेरी डेस्टिनेशन पर पहुंचा नहीं है। तो त्याग वैराग्य है वो तो तेरी पात्रता है, तेरे ज्ञान के लिए वो पात्रता है। ऐसा बताकर हम आगे बढ़ते हैं, जहां तक हम आए थे उससे आगे बढ़ते हैं। यहां तक हम आ गए थे। अभी आत्मज्ञान में असफलता, मुझे आत्म साधना करना है, अनादि से मैं ये प्रयत्न कर रहा हूं और मेरे में असफलता हुई है, तो उसका अर्थ क्या हुआ, क्यों मैं असफल हुआ? अनादि से अनंतवार मनुष्य जन्म मुझे मिला, फिर भी मेरा कार्य नहीं हुआ, तो कुछ तो प्रॉब्लम है। तो असफलता क्यों होती है? तो मैं बाह्य त्याग करता हूं। त्याग अंतरंग में होता है, त्याग होता है आत्मा में, और मैं बाह्य त्याग की बात करता हूं। बाधक निमित्तों को छोड़ने का मैं त्याग कहता हूं। मैंने जमीकन खाना बंद कर दिया है, मैं रात को चौवियार करता हूं, मैं सामायिक प्रतिक्रमण रेगुलर करता हूं। तो ये तो तेरी बाह्य शरीर की क्रिया हुई है। जो तू मैकेनिकली ऐसी क्रिया करता है, तो देखो यहां पर क्रिया का निषेध नहीं है, मगर तू किस तरह से क्रिया करता है। मैं तो अब रेगुलरली प्रतिक्रमण समय करता हूं, आप नहीं करते हो तो आपसे मैं अच्छा हूं। ऐसी मान्यता जिसकी है उसकी बात करते हैं। देखो ऐसा मैसेज यहां से नहीं लेना कि ये प्रतिक्रमण सामयिक को यहां नहीं करने का कहा है, नहीं करने का नहीं कहा है। तेरी मान्यता क्या है, मान्यता पर जोर दिया गया है। तू कुछ भी कर, आचार्य भगवान के हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर तेरी मान्यता क्या है? मैं पर का कुछ कर सकता हूं, मैं शरीर का कुछ कर सकता हूं, मैं शरीर पर मेरा कंट्रोल है, मैं शरीर को रुष्ट पुष्ट रख सकता हूं, मैं शरीर को थीन रख सकता हूं, मैं शरीर को, ये सब जो बाह्य की क्रिया हो, शरीर की क्रिया, उसके पर तूने अपना एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व जमा दिया है। ये शरीर पर तूने बनाया, तो ये उसकी बात यहां पर कह रहे हैं। ग्रहण हुआ है उससे छोड़ने रूप त्याग है। यानी कि जो मैंने बैड हैबिट्स ग्रहण किया है, अभी वो बैड हैबिट मैंने छोड़ दी है। खाने पीने में जो बैड हैबिट थी उसको मैंने छोड़ दिया, तो उसको मैं त्याग मानता हूं। मगर एक बात तू भूल जाता है कि तू तो त्रिकाली शुद्ध आत्मा द्रव्य है, तेरे में पर पदार्थ का कभी ग्रहण हुआ ही नहीं है। आत्मा में एक अगुरु लघु शक्ति है, अगुरु लघु सामान्य गुण है। सामान्य गुण होने के कारण से
आत्मा में जो अनंत गुण है वो कभी बिखर नहीं जाते हैं और कोई नया गुण उसमें आता नहीं है। तेरे पास जो गुण अनंत 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 गुण है, वो गुण में कोई एडिशन नहीं हो सकता, कोई डिलीशन नहीं हो सकता। तो तूने क्या ग्रहण किया, तूने क्या त्याग किया, ये ख्याल में होना चाहिए। जब इस तरह से ख्याल होता है तो मैंने क्या बाह्य त्याग किया, जमीकन का मैंने त्याग कर दिया। अरे तूने ग्रहण कब किया था कि तूने त्याग किया? तो इस तरह से हमको ख्याल में होना चाहिए कि ये बाह्य त्याग, हाँ मैं बाह्य त्याग से मेरे में कोमलता आएगी, मेरे में रुजुता आएगी, मेरे में सरलता आएगी। हाँ ये बाह्य त्याग से होने वाला है, मगर वो भी उसके ऊपर मैंने अभिमान किया है तो उसको त्याग को नहीं कहेंगे। तो बाह्य त्याग की बात करें, बाह्य वैराग्य क्या है? संसार के प्रति आसक्ति मंद करने रूप वैराग्य। अभी मैं क्रोधित नहीं होता हूं। जब मैं यंग था, बिजनेस करता था, हॉस्पिटल में जाता था, मैं क्रोधित था। अभी मैं क्रोधित नहीं होता हूं। अरे तू क्रोधित नहीं होता है क्यों? क्योंकि अभी तेरी कोई सुनने वाला नहीं है, तू अभी रिटायर हो गया है। तेरी कोई सेक्रेटरी नहीं है, तेरे कोई पेशेंट नहीं है, तेरे कोई ग्राहक नहीं है। किसके ऊपर तू क्रोधित होगा? पहले छोटे बच्चे थे तो मैं क्रोधित होता था उनके पर, अभी बच्चे बड़े हो गए, वो मेरे सामने बहस करने लगे, मेरी सुनते नहीं है। मेरी बीवी मेरा सुनता नहीं, तो मैं किसके पर कब क्रोध करूं? तो मेरे में अभी क्रोध की मंदता हुई है और वो मंदता को मैं वैराग्य के रूप में ले लेता हूं। तो ये तेरा बाह्य वैराग्य हो गया। नवीन ग्रहण करने को अटकाने रूप वैराग्य, क्योंकि तुझे बाहर के ऐसे निमित्त मिलते नहीं है तो क्रोध मान माया लोभ होता नहीं है। तू कोरोना में घर में बैठा है 6 महीने से, तो बाहर जाता नहीं है, तो तूने बोला कि बस मेरे कपड़े में से मेरा वैराग्य हो गया, मेरे परफ्यूम में से मेरा वैराग्य। क्योंकि किसको तू बताएगा? तो वो जो तू मंद कषाय हुआ है उसको तू वैराग्य के रूप में लेता है, मगर ऐसे मंद कषाय तूने अनंत बार किए हैं, फिर भी तेरा कुछ नहीं हुआ है। तो ये त्याग और वैराग्य को बाह्य त्याग बाह्य वैराग्य की डेफिनेशन समझ, देखो नहीं करना नहीं कहा है, मगर सच्ची बात समझकर, सच्चा स्वरूप क्या है वो समझकर उसकी ओर जाना, उसका नाम सच्चा त्याग वैराग्य होगा। और जब ऐसा त्याग और वैराग्य सच्चा होगा, तेरे में कोमलता रुजुता सरलता होगी, तेरे में कसाई की मंदता भी हो जाएगी। तो अभी तू ज्ञान लेने के लिए तैयार हुआ है, तेरी जमीन तैयार हो गई है, तेरी जमीन बीज डालने के लिए तैयार हो गई है। जब ग्रीष्म ऋतु की धूप होती है, जो जमीन सूखी हो गई है, कड़क हो गई है, उसमें कोई धान्य की उत्पत्ति नहीं होगी। मगर जब तू उसमें से खेड़ेगा, वो जमीन को तैयार करेगा, उसको पानी पिलाएगा, बीज डालेगा, तो तेरा कार्य होने वाला है। तो ये त्याग वैराग, ये तेरी पात्रता तैयार करने के लिए बात आई है। तो त्याग वैराग साधन में अज्ञानी जीव की भूल कहां पर होती है वो हम देखते हैं। तेरा साध्य क्या है? आत्मज्ञान की प्राप्ति करना मेरा साध्य है। मेरा साध्य मुझे क्या लेना है, मुझे क्या अचीव करना है।
अंधा आदमी था, दरिद्र आदमी था, और उसने प्रभु की बहुत भक्ति, एक रूपक है, प्रभु की भक्ति करी और प्रभु प्रसन्न हुए। बोले कि अच्छा तू मेरा भक्त है तो तू कुछ एक वरदान मांग, मगर एक ही वरदान मांगना है, बस मैं एक ही वरदान तुझे दे सकता हूं। तो ये अंधे आदमी ने क्या मांगा कि मेरे 7वीं मंजिले वाले मकान में टॉप फ्लोर पर वो मेरा सोने के स्विंग के ऊपर मैं अपनी आंखों से मेरे ग्रैंड चाइल्ड को उसके साथ में खेलूं, वो मुझे वरदान दो। उसने एक सेंटेंस में क्या मांग लिया? उसने पैसा मांग लिया, मकान मांग लिया, सोना मांग लिया, आंखें मांग ली, और बाद में एक पुत्र भी ले लिया और पुत्र के पौत्र भी ले लिया। इस तरह से तेरा एम हाई रखना। तुझे आत्मा, तुझे ये आत्मा तुझे बोलता है कि तुझे क्या चाहिए, तो तू क्या मांगेगा? मुझे प्रेसिडेंट में नवंबर 3 में जिता दो, ऐसा तू मांगेगा? अरे ऐसी तुच्छ बात तू मांगेगा? एक जेल में एक राजा था, एक राजा का राज्य है, राजा का जन्मदिन है, वो जेल में गया और सभी कैदियों को बोला कि आपको जो कुछ चाहिए सब कुछ आज मिल सकता है, मैं आज बहुत खुशी हूं, आज मेरी जन्म तारीख है, जन्मदिन है मेरा। एक कैदी ने बोला कि साहब सूखी रोटी मिलती है, अच्छा तुझे जो सूखी कोरी रोटी मिलती है, अच्छा तुझे गरम गरम रोटी मिलेगी और घी वाली रोटी मिलेगी। साहब पानी में स्नान में पानी गर्म नहीं आता है, गर्म पानी मिलेगा। साहब साबुन नहीं है, साबुन मिलेगा। साहब फटे कपड़े हैं, कपड़े तुझे मिलेगा। सभी ने कुछ ना कुछ मांगा, एक आदमी कुछ नहीं मांगता है। तू क्यों बोलता नहीं है? क्योंकि मुझे जो चाहिए आप नहीं देने वाले। नहीं, आज तू जो बोल, मैं बहुत खुश हूं। उसने बोला कि ये फालतू चीज मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए मुक्ति। तो तुझे भी आत्मा बोलता है, तेरा त्रिकाली शुद्ध आत्मा बोलता है, भगवान आत्मा बोलता है तुझे क्या चाहिए। तो फालतू वस्तु मत मांग, उसको बोल कि मुझे आत्मज्ञान चाहिए, मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति चाहिए, मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। तो आत्मज्ञान मेरा साध्य है, ये मेरा ध्येय है। तो उसके लिए साधन भी होता है। जब साध्य होता है तो साधन होता है। और एक बात ख्याल में रखना, जैन फिलॉसफी के अंदर साध्य और साधन एक द्रव्य में ही होते हैं। ये मेरे घर की बात नहीं है, ये शास्त्र की बात है। साध्य और साधन एक ही द्रव्य में होते हैं। त्रिकाली शुद्ध आत्म द्रव्य आत्मज्ञान मेरा साध्य है, तो मेरे में से ही, मेरी पुरुषार्थ से ही, मेरे साधन अंतरंग साधन से ही मेरे साध्य की प्राप्ति होने वाली है। तो अंतरंग पात्रता मेरी होनी चाहिए, मेरे में कषाय की मंदता होनी चाहिए, क्रोध मान माया लोभ रूपी कषाय से मुझे मंदता होनी चाहिए। ऐसा मेरा साधन होगा। तो ध्येय मेरा कहां पर है? साध्य पर है। और मंद कषाय हो गए, वो साधन है, साधन है, वो साध्य नहीं है। इतना मानकर मुझे मेरा जो साध्य है वो पॉइंट ब्लैंक मुझे वो ख्याल में रखना पड़ेगा कंटिन्यूअसली। क्योंकि अंतरंग की पात्रता होती है ना, क्रोधमान माया लोभ की मंदता होती है ना, तो जीव खुश हो जाता है और उसमें वो कृत्यपना मान लेता है, साधन को ही साध्य मानने लगता है।
तो आचार्य भगवान कहता है ये मत बोलना कि तेरा कार्य क्या है, साधन को ही साध्य नहीं मानना है। तो ये आत्मज्ञान साध्य है, अंतरंग साधन है, अंतरंग पात्रता है, और बाह्य साधन में संयम, पूजा, भक्ति, सामायिक प्रतिगमन, ऐसे शरीर की क्रिया भी होती है, मगर ये बाह्य साधन है। अंतरंग साधन जो है वो अंतरंग साधन और साध्य एक द्रव्य में ही रहते हैं, तो ये तुझे भूलना नहीं है। ये बाह्य साधन तुझे ये अंतरंग साधन को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करेगा। बाह्य साधन अंतरंग साधन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मदद करेगा, और अंतरंग साधन तुझे साध्य की ओर जाने के लिए ले जाएगा। तो कहां पर भी बाह्य साधन में अटकना नहीं है, अंतरंग साधन में अटकना नहीं है, मुझे साध्य की तरफ दृष्टि करना है। नहीं भैया, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हम तो मानव सेवा में मानते हैं, बस वो ही मेरा धर्म है, वो मेरा कृतकृत्यपना है। किसने तुझे ना बोला कि मानव सेवा नहीं करना? मगर जब तू वहां पर ही अटक जाता है, मानव सेवा करता हूं, बस वही मेरा धर्म है, वही मेरा कार्य है, तो तू अंतरंग साधन में भी नहीं आएगा, तो साध्य की तरफ कैसे जाएगा? इस तरह से मेरे में अज्ञानी जी की भूल क्या हो गई, ये बाह्य साधन में मैं अटक जाता हूं, मेरे में संयम है, पूजा भक्ति करता हूं, अरे ये भाई तो इतनी अच्छी भक्ति कराते हैं कि हम तन्मय हो जाते हैं, तो इसमें क्या है? इससे तो ये बाह्य साधन से वो अंतरंग साधन की ओर जाने वाला है। तो ये बाह्य साध्य की बात भूलना नहीं है, और साधन से साध्य की ओर जाना होता है, साधन से साध्य की ओर जाना होता है। इस अज्ञानी बाह्य साधन को ही साध्य मान लेता, हमने तो बस इतनी पूजा भक्ति कर दी, अच्छा है, हमने मंदिर बना दिया है, अच्छा है, हम पाठशाला चलाते हैं, हम अच्छे कार्य करते हैं, हम सेवा करते हैं, भूखे को खाना देते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, किसी ने ना नहीं बोला है, मगर वो बाह्य साधन को ही तू कृतकृत्यपना मान लेगा, तो ये तेरी भूल, अनादि की भूल हो गई है। तुझे ख्याल में रखने का है कि मेरी भूल कहां पर है, इतना जानकर कहीं पर भी अटकना नहीं है। देखो 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी भी मिथ्यात्वी हो सकता है। फिर से 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी भी मिथ्यात्वी हो सकता है। पहले तो 11 अंग और 9 पूर्व क्या है? देखो 11 अंग और 12वां अंग है, उसमें 9 पूर्व 14 पूर्व की बात आती है, 14 पूर्व की बात आती है। दृष्टि प्रवाद करके 12वां अंग है, उसमें ये 14 पूर्व आते हैं। अभी पहला अंग आचार अंग है, दूसरा सूतकृतांग अंग है, इस तरह से अंतकृतांग अंग, इस तरह से 12 अंग की बात, 12 अंग में शास्त्रों आ गए। 12 अंग में जो पहला अंग है आचार अंग सूत्र है। आचार अंग सूत्र में 18,000 चैप्टर्स, और एक एक चैप्टर में 51 करोड़ से ज्यादा श्लोक। अभी जो कंप्यूटर वाले हैं वो कैलकुलेट करके मुझे बता दे कि कितने श्लोक हो गए। ऐसे तो आचार अंग सूत्र हुआ, पहला अंग हुआ। दूसरा अंग सूतकृतांग अंग है, उसमें 36,000 चैप्टर है, और एक एक चैप्टर में 51 करोड़ से ज्यादा श्लोक है। तो इस तरह से 11 अंग और 9 पूर्व का तुझे ज्ञान होता है, मगर जब वो बाह्य साधन के रूप में है, तू यहां पर अटक जाता है।
11 अंग और 9 पूर्व, बाकी के 5 पूर्व रहे, तो जिसको 12 अंगों की जो ज्ञान हो जाता है उसको सुत केवली कहा जाता है, उसको सम्यकदर्शी जीव कहा जाता है। तो इस तरह से मैंने 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान कर दिया, अभी 5 पूर्व का ज्ञान ही बाकी है। ऐसे जीव भी नीचे पड़ जाएंगे, मिथ्यात्व में रह जाएंगे। क्यों ऐसा है? इतना ज्ञान, इतना ज्ञान, इतना ज्ञान, तो भी आपने बोल दिया कि वो मिथ्यात्वी रहता है। क्योंकि 11 अंग और 9 पूर्व के ज्ञान होने के बाद में जब वो 10वें पूर्व का ज्ञान करने जाता है तो उसको लब्धि प्रकट होती है, असाध्य लब्धि प्रकट होती है, और ये जीव ये लब्धि में अटक जाता है। अरे मेरे में कितनी लब्धि, 64 रुद्धि, 64 रुद्धि है, ऐसी रुद्धि प्रकट होती है। इसमें से कोई भी रुद्धि प्रकट होती है, यानी कि चारण रुद्धि, यानी कि आकाश गमन करने की ताकत हो जाती है, वामन में से विराट होने की ताकत हो जाए, इस तरह से जो लब्धि होती है इसमें जीव अटक जाता है। यानी कि ये जो कुछ कार्य किया यहां पर तू अटक जाता है तो तू आगे बढ़ नहीं सकता है। तो ये बाह्य साधन को ही साध्य मानकर उससे कृतकृत्यपना तूने मान लिया, तो तू फिर से वो सांप सीढ़ी की गेम आती है ना, 96 से 97 पर से जो तेरा नंबर आ गया फटाक करके तू नीचे उतर जाएगा। इस तरह से यहां पर भी तू नीचे उतर जाता है, क्योंकि तूने बाह्य साधन को ही साध्य मान लिया है। त्याग वैराग्य क्रिया उपयोग शून्य रीत से होने से कार्य सिद्धि नहीं होती है। ये सब मैंने पंडिताई के लिए सब कुछ किया है, मेरी विश्व में मेरी प्रसिद्धि हो गई है। अरे ये कितना जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, कोई भी शास्त्र की बात करो विदाउट देखे बिना वो शास्त्र की बात का रेफरेंस देते हैं, बहुत ज्ञानी है, बहुत ज्ञानी है। अरे वो तो त्याग वैराग जो तूने जो क्रिया करी है, त्याग वैराग, अरे वो उपवास करते हैं, 50 उपवास करते हैं, 100 उपवास करते हैं, इस तरह से बाह्य की क्रिया होती है, उसमें तू ओतप्रोत हो जाता है, तुझे यहाँ मान मिलता है, तेरा साध्य क्या है वो साध्य तू भूल जाता है, साध्य को भूल गया है और तू उपयोग शून्य हो गया है। तो इससे कार्य करने से तेरी का इससे क्रिया कर तेरी कार्य की सिद्धि नहीं हुई है। तू ही तेरा प्रॉब्लम है, तूने मिस्टेक किया है, तो तू अपनी मिस्टेक सुधार सकता है। त्याग वैराग्य क्रिया का अभिमान होने से जीव को नुकसान होता है। मैं प्रतिक्रमण करा सकता हूं और मुझे प्रतिक्रमण मुख पाठ है और मैं फटाफट एक सूत्र से दूसरे तीसरा बोल सकता हूं, अच्छी बात है, मगर उसके पर अभिमान नहीं करना है, उससे तुझे आगे बढ़ने का है। देखो ये जो ज्ञान हुआ ना, त्याग वैराग्य क्रिया की, उसमें ज्ञान भी ले लेते हैं, तो तुझे जो ज्ञान हुआ है ना उसको क्षयोपशम ज्ञान कहेंगे, यानी कि तेरी याद शक्ति ज्यादा है, मगर वो याद शक्ति ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मगर तूने वो याद शक्ति को अंतरंग में अंतरंग की तरफ दृष्टि कराया। श्रीमद जी को शतावधान थे, एक साथ में 100 वस्तु एक साथ में सुन सकते थे, देख सकते थे, याद रख सकते थे। कोई
श्लोक बोलता है, चौथी कड़ी बोलता है, बाद में कोई तीसरी कड़ी बोलता है, कोई बेल रखे बेल लगा रहा है, कोई किसी का नाम बोल रहा है। इस तरह से 100 वस्तु एक साथ में हो रही है। श्रीमद जी को वो सब याद रखने की ताकत थी। और इस दफा उस टाइम पर ब्रिटिश का राज्य चलता था, तो वाइस रॉय ने बताया कि भाई ये लड़का बहुत बहुत बुद्धिशाली है, हम उसको लंदन ले जाएंगे। श्रीमद जी ने बोला कि ये मेरा ज्ञान, क्षयोपशम ज्ञान से मुझे अभिमान की तरफ ले जा रहा है मेरा ज्ञान। उन्होंने उस दफा वो शतावधान को छोड़ दिया। बोला मुझे कोई लंदन बंदन नहीं जाना है, मुझे तो आत्म, उनको साध्य क्या है, उनका एक ध्येय था, नैरो फोकस था। तो उन्होंने ये शतावधान भी छोड़ दिया, क्योंकि वो अभिमान का, मान कसाई पोषण करने का साधन होने वाला था। इस तरह से हमको ख्याल रखने का है। जो ज्ञान होता है वो ज्ञान, और जो क्रिया होती है वो क्रिया तुझे मंद कषाय करने की प्रवृत्ति में जो लगती है, तो वो सच्ची और की क्रिया, सच्चे बात की क्रिया है। अदर नहीं तो तुझे वो मान कषाय देगी, तो तेरा कुछ कार्य नहीं होगा। त्याग की बात आई तो बाह्य त्याग की बात करते हैं। स्त्री, पुत्र, धन, घर इत्यादि पर द्रव्यों का त्याग मैंने कर दिया। मैंने बहुत बुरे काम किए हैं, और पुलिस आके मुझे जेल में ले गई, मेरा सब बिजनेस के पैसा वैसे सब कुछ वो जब्त कर दिया, तो बस मैंने त्याग कर दिया। अरे त्याग क्यों कर दिया? तेरी ताकत नहीं थी रखने की, इसलिए तू बोलते भी त्याग हो गया, ऐसा बोलता है। आत्म लक्ष्य पूर्वक का बाह्य त्याग अंतरंग त्याग का निमित्त होता है। तू वॉलंट में रिटायर्ड हो गया। कौन सी एज पर तू रिटायर्ड हुआ भैया? 81 की उम्र पर अभी मैंने बोला मैं अभी रिटायर्ड होने वाला हूं। क्यों रिटायर्ड होने वाला है तू? क्योंकि अभी कोई तेरा सुनता नहीं है, तो तू बोलता है मैं रिटायर्ड होने वाला हूं। एक प्रसंग याद आता है कि हमारे एक जाने पहचाने वाला फैमिली था, तो उन्होंने उनके पिताजी का 75th बर्थडे थी बम्बई में। तो उन्होंने सारे समाज को बुलाया और सारे दिन का प्रोग्राम रखा, और सबको खाना पीना सब कुछ बहुत अच्छी तरह से प्रोग्राम किया। लंच हो गया, सभी प्रोग्राम अभी चलता है, काइंड ऑफ आफ्टरनून में लंच, थोड़ा सा ठंडा काम हो गया था। तो सब भाइयों ने बोला अरे पिताजी कहाँ गए? पिताजी का उनकी तो हमने 75th बर्थडे मनाई है, कहाँ गए कहाँ गए? तो ये बच्चे यहाँ बर्थडे मनाते हैं और दादाजी पहुंच गए बिजनेस पर। तो तू क्या, तू बिजनेस के लिए सारे जिंदगी करने वाला है? जब तेरे बीवी बच्चे और ग्रांड की तो धक्का मार के बिजनेस से निकालेंगे, तब तू बोलेगा अच्छा अभी तो मैंने रिटायरमेंट ले लिया। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने का कभी तूने सोचा है? तो आत्म लक्ष्य पूर्वक का बाह्य त्याग जो होता है, तू वॉलंटरली रिटायर होगा तो अंतरंग त्याग का निमित्त हो सकता है। अभी वो अंतरंग त्याग करा नहीं सकता, मगर उसके लिए निमित्त हो सकता है, क्योंकि अभी तुझे समय मिला है, अपने आत्मा की तरफ देखने का समय मिलना है, शास्त्र स्वाध्याय का समय मिला है, तो वो अंतरंग त्याग की तरफ तुझे ले सकता है। तो ये अभ्यंतर त्याग की ओर जो ले सकता है बाह्यता, तो वो अभ्यंतर त्याग क्या है? तो अभ्यंतर त्याग है क्रोधादि विकारी भावों का त्याग होना। मंदता, मंद नहीं होना, त्याग होना। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, अज्ञान, मिथ्यात्व का त्याग होना।
जब ऐसा होता है तब पर वस्तु में जो तन्मयता थी वो तन्मयता तेरी निकल जाएगी। अभी तो घर में बैठा है, 6 महीने से बैठा है कि कितना वेकेशन का तुझे विचार आ गया। चलो हम यूरोप जाएंगे, नहीं नहीं हम अलास्का जाएंगे, नहीं हम तो चाइना जाए। कोई विचार आता है अभी तुझे? तो पर वस्तु में तू तन्मयता ऑटोमेटिक तेरी निकल गई है। तो तू जब अंतरंग के अंदर जाता है तो बाह्य का त्याग, पर वस्तु की तन्मयता ऑटोमेटिक तेरी कम हो जाती है। आत्मा की समझ के साथ मैं आत्मा प्राप्ति के लिए ये सब कर रहा हूं, ये जो मेरा ध्येय है, तो उसके साथ मिथ्यात्व और रागादि भाव का त्याग सहजता से होता है। प्रकाश होता है, अंधकार का नाश होता है। अंधकार का नाश हुआ ऐसा कहा जाएगा। ज्ञान प्रकाश होता है तो मिथ्यात्व और रागादि रूपी अंधकार का नाश होता है, उसको त्याग करना नहीं पड़ता है। तू ज्ञान प्रकाश रूप तेरी शक्ति को तू टटोल कर दे, उसको जागृत कर दे। तेरे में केवल ज्ञान लेने की ताकत है। अरे निगोद के जीव में भी, निगोद का जीव का जो द्रव्य है उसमें केवल ज्ञान लेने की ताकत पड़ी हुई है। मेरे में केवल ज्ञान लेने की ताकत पड़ी है, मगर मैं अंतर की तरफ दृष्टि नहीं करता हूं। पर में से ही मेरा कृतकृत्यपना में मान कर बैठ गया हूं। त्याग की बात आई तो अभी वैराग्य की बात करते हैं आगे। ग्रह कुटुंबादि प्रति अनासक्त भाव, संसार देह भोगों के प्रति उदासीन भाव, पर पदार्थ दुख के कारण है ऐसा जानकर सत सुख निजात्मा में ही, सत सुख निजात्मा में है ऐसा मानना, तो पर भाव की तृष्णा से निवृत्ति ऐसे ज्ञान गर्भित वैराग्य होता है। वैराग्य के बहुत रूप अलग अलग होते हैं, यहां ज्ञान गर्भित वैराग्य की बात की है। तुझे एक दुख गर्भित वैराग्य होता है। कोई यंग आदमी का मृत्यु हुआ है और तू शमशान में गया है और ये चिता जब जल रही है तो तुझे वैराग्य होता है कि अरे ये जीव अभी तो यहाँ पर हिलता चिलता था, मर गया। हमारा भी ऐसा हो सकता है, हम भी वैराग्य की ओर आगे बढ़ेंगे। उसको श्मशान वैराग्य कहा है। वो जब घर पर आएगा, संसार की प्रवृत्ति में ओतप्रोत हो जाएगा, वो सब कुछ भूल जाएगा, वैराग्य की बात भूल जाएगा। दूसरा है मोह गर्भित वैराग्य। अरे ये मुनिराज को देखो, सारा समाज उसके पीछे दौड़ता है, उनके पास कुछ नहीं है तो भी सारा समाज उसके पीछे दौड़ता है। वो तो नग्नता है उनके पास, कोई वस्तु भी नहीं है, तो उनको इतना मान पान मिलता है। तो मैं भी ऐसा मुनिराज हो जाऊं तो मुझे भी ऐसा मान पान मिलेगा। इस तरह से तू मोह गर्भित वैराग्य करता है। मोह की लालच से तू त्याग करता है, वैराग्य करता है, तो वो मोह गर्भित वैराग्य हुआ। वो भी सच्चा वैराग्य नहीं है। मगर जो ज्ञान गर्भित वैराग्य है, जब तूने देखा कि गुरु कुटुंब के साथ अनासक्त भाव हुआ, संसार भोगों प्रति उदासीन भाव हो गया है, पर पदार्थ दुख के कारण है, क्योंकि पर पदार्थ में सुख का गुण नहीं है। सुख का गुण तो मेरे अपने में है, मैं सुख स्वरूपी हूं। तो ऐसा जानकर सत सुख निजात्मा में है ऐसा मानना और पौ भावों की तृष्णा से निवृत्ति होना, ये निजात्मा में, सुख निजात्मा में है, ये अस्थि से बात आई। और पर भाव की तृष्णा से निवृत्ति नास्ति से बात आई। तो ऐसे ज्ञान गर्भित वैराग्य को सच्चा वैराग्य कहा गया है। और यहाँ दो बात कितनी अच्छी आई है,
इस तरह से हमारे जैन धर्म की परंपरा है कि इसमें अस्ति नास्ति से बात आएगी। अस्ति नास्ति से बात करने से जो बात कहने की हिम्मत हुई है तो उसमें से तेरी दृढ़ता बढ़ती जाएगी। ये अस्ति से सत्सुख निजात्मा में ऐसा मानना और पर भाव की तृष्णा से निवृत्ति होना, ये दो जानने से तुझे ज्ञान गर्भित वैराग्य होगा। जो वैराग्य तुझे आत्मज्ञान की प्रति ले जाएगा, तुझे आत्मा की अनुभूति की तरफ ले जाएगा। ये सच्चा पाठ है तेरे लिए। ऐसे हम त्याग और वैराग्य दोनों की बात देख ली। यहाँ पर हमने यहाँ पर त्याग देख लिया, यहाँ पर हमने वैराग्य देख लिया। ये इतना तो तेरे लिए जरूरी है, ये तेरी पात्रता के लिए जरूरी कार्य है। तो श्रीमद जी ने बताया पहली लाइन में, त्याग विराग न चित्मा थायन तेने ज्ञान। त्याग विराग जिसके चित्त में होते हैं उसको ज्ञान हो सकता है। इतना बताने के बाद में अभी तक ये पहली लाइन की बात यहां पर खत्म होती है। त्याग वैराग्य तूने कहा है, तेरी जमीन अभी तैयार हो गई है, तेरी जमीन बीज को बोने के लिए तैयार हो गई है, मगर तू बीज नहीं बोएगा तो उसमें से धान्य नहीं आएगा। अजय तुझे आगे बढ़ने का है, तूने जमीन तैयार कर दी, पानी लगा दिया, सब कुछ करे, बाद में तू घर पर आ गया, बस मेरा कार्य होगा। अरे अभी तो कार्य तेरा चालू हुआ है, यहां तुझे अटकना नहीं है, तुझे आगे बढ़ना है। तो इतना त्याग विराग न चित्मा थाने ज्ञान, अटके त्याग विरागमा तो भूले नहीं। अभी ये त्याग वैराग्य में ही तू संतुष्ट हो गया, ये साधन में ही तू संतुष्ट हो गया, तो तू साध्य की ओर नहीं जाएगा। तुझे साध्य की ओर जाना है, इस तरह से तुझे देखना है। एकलव्य का जो साध्य था, बाण विद्या सीखने का साध्य था, तो उसने गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर उनको ये मूर्ति को अपना गुरु मान लिया और उसने अपने से ये बाण विद्या सीख ली, क्योंकि उसका ध्येय वहां पर था। और जो कौरव थे वो एक्चुअल गुरु द्रोण के पास थे, मगर उनका जो ध्येय नहीं था तो उनको बाण विद्या में सफलता नहीं मिली। इस तरह से तुझे सुनना समझना पड़ेगा कि ये पाथ जो है वो स्लीपरी पाथ है, मुझे ध्यान से चलना है, वो तलवार की धार पर चलने जैसा है, मगर जब मैं ये कार्य के लिए तैयार हुआ हूं तो मेरा कार्य जरूर होगा, ऐसी एक श्रद्धा अंदर है, एक डिटर्मिनेशन है, एक प्रतीति है अंदर कि मेरा कार्य होगा ही। इस तरह से पॉजिटिव एटीट्यूड से तू निकला है, पॉजिटिव एटीट्यूड से तू कार्य के लिए निकला है, तो तेरा कार्य होगा, जरूर होगा, ऐसे श्रीमद जी हाँ हमको कहते हैं। तो सब प्रक्रिया कैसे होती है अभी हम देखते हैं कि त्याग वैराग्य की बात करी तो अभी प्रक्रिया क्या, तो पर वस्तु का अपरिचय, पर वस्तु से मुझे फायदा होने वाला है। जो वर्ल्ड ट्रैवल करके आया है और जो अपने गांव से बाहर नहीं निकला है, दोनों में क्या फर्क है? तूने सारी दुनिया देख ली है, और जिसने गांव से बाहर नहीं निकला है तो दोनों में क्या फर्क हो गया? दोनों मर गए बाद में, तो दोनों में क्या फर्क हुआ? कुछ फर्क नहीं हुआ। पर वस्तु का अपरिचय तू करेगा, पर वस्तु में जो तेरी तादात्म्यता है, तन्मयता है, वो तू कम करेगा। देखो, मुझे ये खाना बहुत अच्छा लगता है और ये खाना अच्छा नहीं लगता है। हमने ऐसी भी स्टोरी सुनी है
और हुआ था, हो रहा था पहले कि जब सेठ घर पे आते हैं तो उनको गरम गरम रोटी के फुलके देने पड़ते थे, यानी कि तभी से निकले हुए फुलके राइट अवे उनकी थाली में आना चाहिए, नहीं तो वो थाली फेंक देंगे। क्यों भैया, क्यों तू इतना 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 मान कसाई करता है? वो तो रोटी ही है ना, तो रोटी चबा के बाद में तो वो तो पेट में जाने वाली है ना, तो तूने थाली को क्यों फेंक दिया? तेरे शरीर ने बोला कि मुझे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट चाहिए, तूने क्या दिया? कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट दिया, तो तेरा स्टमक बोलता है अच्छी बात है, मुझे खाना मिल गया। मगर ये तेरी 10-15 ग्राम वाली जीभ जो है वो तुझे डांस कराती है, नचाती है, मुझे तो ये खाना ही चाहिए, मुझे तो ये खाना ही चाहिए, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। क्या तू करेगा? पर वस्तु का अपरिचय करने का है। जो वस्तु है, वो जो फूड है, जो तेरे में पहने रहने की वस्तु है, उसमें से संतोष तू रख, पर वस्तु का अपरिचय कर। बाद में क्या आएगा? पर द्रव्य की तादात्म्यता की निवृत्ति होगी। अरे फुल्का ठंडा है या तो गर्म है, मगर वो तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट ही है ना, तो मुझे तो शरीर के अंदर में पेट को जिस खाना देने का है, तो उसके प्रति मेरा तादात्म्य जब अपरिचय किया, तो तादात्म्य भी कम हो गया, तादात्म्य की निवृत्ति हो गई। शरीर का पर वस्तु यानी कि कपड़े, गहने, खाने पीने की वस्तु, ये सभी 5 इंद्रियों के विषय जो है उसको अपरिचय किया, तो उसमें तादात्म्यता भी मेरी निवृत्ति हो गई। तो वो तादात्म्य की निवृत्ति हो गई तो बाह्य पदार्थों की तुच्छता के विचार का अवकाश होता है। अभी तेरे पास तेरे क्लोजेट में हंड्रेड्स ऑफ क्लोथ्स है, कितने सूट भी है, कितनी साड़ियां है, मगर तू घर से बाहर ही नहीं निकलता है, सुबह से शाम तक तू नाइट ड्रेस में घूमता है। तो तुझे ये बाह्य पदार्थों की तुच्छता होने का अवकाश मिला है। ये कि कोरोना में मैं डिप्रेस नहीं, अंदर जाने के तुझे अवकाश दिया गया है। ऐसे धन्य अवसर को तू एक्सेप्ट कर दे, तो पर पदार्थों की तुच्छता का विचार का अवकाश होता है, तो जीव के विचार बल और संयम बल की वृद्धि होती है। अभी तुझे थोड़ा समय मिला है, विचार करने का समय मिला है और संयम भी मिला है। तुझे बाह्य के प्रति जो उत्सुकता थी, वो उत्सुकता कम हो गई है। जाना है तुझे वेकेशन पर, चल मैं तुझे बैठा दूं चाइना के लिए, तू जो प्लेन में बैठा दूं। नहीं 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 जाना है मुझे, कोरोना नहीं चाहिए मुझे। क्यों? हर रोज तू बोलता था मैं यहाँ जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, क्यों नहीं जाना है अभी? तो तुझे संयम की वृद्धि होती है और विचार बल का अवकाश तुझे मिला है। पर पदार्थ की आसक्ति की क्रमशः मंदता होती है। जो कुछ घर में है तू खा लेता है, जो कुछ पहनने का है तू पहन लेता है, जो कुछ सुनने का, देखने का, पढ़ने का, तो उससे तू क्रमशः तेरी आसक्ति की मंदता होती है। और अंतरंग त्याग वैराग्य की दृढ़ता बढ़ती है। देखो किस तरह से पर वस्तु का अपरिचय करके स्लोली तू अभी अंतरंग त्याग वैराग्य की दृढ़ता के ऊपर आया है। और जब तू वहां पर आया है तो चित्त और मन की निर्मलता प्रकट होती है। जो अभी तक कलुषित मन था, कलुषित चित्त था, वहां निर्मलता का अवकाश प्राप्त हुआ है और आत्म तत्व के अभ्यास की सुदृढ़ता हुई है। जब तेरे में चित्त और मन की निर्मलता होती है
तो तेरे में तत्व अभ्यास की सुदृढ़ता होती है। ये दोनों साथ साथ में चलते हैं। जब तू क्रोधित होता है तब तुझे भक्तामर, तुझे मुखपाठ है भक्तामर का पाठ बोलना। जब तू क्रोधित है नहीं बोल सकेगा तू। मगर जब तू शांत है, रात की नींद के बाद में सुबह में उठा है, शांत है, रिलैक्स है, अभी तो भक्तामर का पाठ कर एकदम आनंद से, एक के बाद एक के बाद एक के बाद गाथा आती जाएगी और तुझे उससे उसमें से आनंद मिलता जाएगा। अंतरंग आनंद की प्राप्ति होने वाली है। ये आत्मज्ञान की सुदृढ़ता हुई तो उसका अल्टीमेट एम हो गया आत्मानुभव। तो यहां से तूने चालू किया पर वस्तु का अपरिचय से, वहां से तू आके आत्मा अनुभव तक तू आ गया। तो इस तरह से ये प्रक्रिया चालू रहेगी तेरी, इसको ध्यान रखने का है। तो अभी इतना सब त्याग वैराग्य की बात, तो शुष्क ज्ञान की भी बात कर लेते हैं। क्योंकि समझ कहते हैं भाई देखो, एक अकेले बाह्य त्याग वाला की बात हम नहीं करने वाले। शुष्क ज्ञानी भी है, जिसको ज्ञान का अभिमान है, उसको भी हम यहाँ रेड लाइट बताते हैं कि तेरा प्रॉब्लम क्या है। तो शुष्क ज्ञानी मानता है कि तब त्याग की जरूरत नहीं है। ये सब क्या फालतू चीज है, ये तो बाह्य की क्रिया है, शरीर की क्रिया है, उसको छोड़ दो। क्योंकि शास्त्र में लिखा है एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कार्य नहीं करता है, तो शरीर की क्रिया से मुझे क्या फायदा होने वाला है। इस तरह से तर्क करता है। अच्छी तरह से तर्क करके जो त्याग वैराग्य के पाथ पर था उसको भी रॉन्ग पाथ पर ले जा सकता है। ऐसा शुष्क ज्ञानी अपने तर्क लगाता है। श्रीमद जी ने एक जगह पर कहा है कि देखो, जो तर्क की बात करने की है ना, तो मेरे में तर्क की जबरदस्त ताकत है और मैं प्रूव कर सकता हूं कि जैन धर्म के एक एक सिद्धांत गलत है तर्क से। मगर ये मेरा आशय नहीं है। तर्क तो इसलिए करना है कि तुझे आत्मज्ञान की तरफ जाना है। ये तर्क क्या होता है? तर्क क्या होता है? यानी कि जब मेरे में आत्मज्ञान होता है, यानी कि आत्म की अभेद अनुभूति होती है, उसको हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहेंगे। जैसे अरिहंत सिद्ध भगवान को ज्ञान है, वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। जैसे सम्यक दृष्टि जीव को ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान है। पंचम गुण स्थानक वाली श्रावक का ज्ञान अभेद ज्ञान है। और छठे सातवें गुण स्थान वाले जुलते भावलिंगी मुनिराज का ज्ञान भी अभेद ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है। तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। मगर जब मैं मिथ्यात्व गुण स्थानक पर हूं तो मेरे में परोक्ष ज्ञान है, इंद्रिय जन्य ज्ञान है। इंद्रिय से मुझे पर का ज्ञान होता है, शास्त्र का ज्ञान होता है, परोक्ष ज्ञान होता है। तो तर्क वो परोक्ष ज्ञान में आएगा। तो ये शुष्क ज्ञानी तर्क से तब त्याग की जरूरत नहीं है, ऐसा दलील करेगा। वृथा कलश है और बंध के कारण है। शरीर की क्रिया तूने करी है तो तुझे बंध होगा। शुष्क ज्ञानी बोलेगा कि तीर्थंकर का नाम, तीर्थंकर नाम कर्म का बंधन ही बंधन है, वो मुक्ति नहीं है, बंधन है। ऐसा न्याय देगा। तीर्थंकर को भी तीर्थंकर नाम कर्म का बंधन है। हाँ बराबर है, तो क्या है? तो नहीं करना, ऐसा शुष्क ज्ञानी बोलेगा। तो वो शुभ उपयोग है, इसलिए एकांत से हे मानता है। ये सभी जो क्रिया है, देह की क्रिया है, सामायिक प्रतिक्रमण की क्रिया है, दया दान व्रत तप जब भक्ति की क्रिया है, वे सब शुभ उपयोग है। और शुभ उपयोग से बंध होता है। और इसलिए ये शुभ उपयोग को हे मैं मानता हूं। हे मीन्स छोड़ने लायक है, ऐसा मानता हूं। हाँ ये शास्त्र का शब्द है, ये तीसरी बुलेट ये शास्त्र का शब्द है। तो ये शास्त्र का शब्द मान के बोलता है कि शुभोपयोग हे है, करने लायक नहीं है। अच्छी बात है। देखो, आत्मा तीन वस्तु कर सकता है।
एक्चुअली दो वस्तु कर सकता है, शुद्ध उपयोग और शुद्ध उपयोग। शुद्ध उपयोग मीन्स शुद्ध ज्ञान, मीन्स अभेद ज्ञान, मीन्स आत्मज्ञान, मीन्स सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन, आत्मानुभूति। और शुद्ध उपयोग यानी कि विभाव भाव, ये स्वभाव भाव हो गया। शुद्ध उपयोग स्वभाव भाव, ये हो गया विभाव भाव। तो विभाव भाव जो हो गया तो उसमें दो पार्ट हो जाएंगे। विभाव भाव में दो भाव, शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग। इस तरह से हम देखेंगे तो तीन पार्ट हो गए, शुद्ध उपयोग और अशुद्ध उपयोग। अशुद्ध उपयोग में शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग, ये दोनों पुण्य पाप के परिणाम जो है उसको हम विभाव भाव कहेंगे। और विभाव भाव तो है, विभाव भाव करने योग्य नहीं है, शास्त्र का शब्द आ गया इसलिए नहीं करना। तो देखो, शुद्ध उपयोग, शुभ उपयोग, अशुभ उपयोग, तो ये शुभ उपयोग है और मुझे आत्मज्ञान तो नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? तो मैं क्या करूंगा? तो मैं क्या अशुभ करने जाऊंगा? तो ये शुष्क ज्ञानी जिसको आत्मा की अनुभूति नहीं है, वो बोलता है कि ये तो शुभोपयोग तो है, नहीं करने लगे, यानी कि वो अशुभ यानी कि पाप की प्रवृत्ति के रुक जाता है। ये प्रॉब्लम है तेरा शुष्क ज्ञानी का प्रॉब्लम का। इसलिए वे स्वच्छंद में वर्तता है, स्वच्छंद से वर्तता, जो अपनी मनमानी करता है, बस मुझे ये अच्छा लगता है मैं करता हूं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? भैया तुझे जो करना है कर, हमको क्या प्रॉब्लम है? इस तरह से वो अपने स्वच्छंद में वर्तता है। शुभ को छोड़कर अशुभ में वर्तन करता है, शुद्धता नहीं है। शुभ ने उसको छोड़ दिया तो बाकी कौन रहेगा? अशुभ रहेगा। तो वो अशुभ में बस खाने पीने में 10, 15, 20 बार खाता है, यहाँ खाता है, बाहर जाता है, कोई अभक्ष्य खाता है, कोई क्रिया नहीं करता है, धर्म की क्रिया नहीं, क्योंकि वो तो शुभ उपयोग है। शुभ उपयोग तो कर्म का बंधन का कारण है, ये नहीं करने के बाद में वो अशुभ में जाता है। ऐसे शुष्क ज्ञानी को भी यह चेतावनी दी गई है कि तू बोलता है शुभ उपयोग है क्यों? कि तुझे शुद्ध की ओर जाना है, इसलिए तुझे उसको हे कहा है। मगर जब दो ही बात तेरे में है, पाप और पुण्य, तो उसमें तू क्या पाप करेगा? पुण्य छोड़ देगा तू पाप करेगा? तो यहां चेतावनी दी गई है कि तू अपने अकेले शुष्क ज्ञान में व्यस्त मत रहे। समझ, उसको ज्ञान को समझकर आत्मा की तरफ जाने का प्रयत्न करना है। मंद कषाय छोड़कर तीव्र कषाय में वर्तन करता है। पहले मंद कषाय था उसको, अभी बस ये शुभ उपयोग छोड़ दिया तो वो तीव्र कषाय में आ गया और तीव्र क्रोध मान माया लोभ करता है, अभिमान करता है, अपने ज्ञान का अभिमान करता है। मैं कितना जान सकता हूं, आपको कुछ मालूम नहीं है, आ जाओ मेरे पास, मैं सबको सब कुछ सिखा दूंगा। इस अभिमान करता है, कषाय करता है, तो वो जाएगा अनादि संसार की ओर, अंदर चाल चलता रहेगा। वो कड़वे रस को छोड़कर विष को ग्रहण करता है। तुझे अमृत पीना है, तेरे पास कड़वा रस है, वो कड़वे रस को छोड़कर, अमृत तो है नहीं तेरे पास, तो तू विष को ग्रहण करता है। ऐसे शुष्क ज्ञानी को जोर से चेतावनी दे दी यहाँ पर कि तुझे भी ख्याल रखना है। तू खुश था, त्याग विराग की बात को जब हम उनको झटका देते थे तो तू खुश था, मगर तेरे खुशी होने की जरूरत भी, तू भी विष को ग्रहण कर रहा है। अभी तुझे ख्याल रखने का है, तुझे ध्यान रखने का है,
तो इस तरह से यहाँ पर दोनों की बात करने के बाद में फिर से एक स्लाइड ले लेते हैं। स्त्री पुत्र आदि कुटुंब धन आदि का बाह्य त्याग पूर्व में अनंत बार किया, फिर भी आत्मधर्म क्यों नहीं हुआ? प्रथम सच्ची समझ करनी पड़ेगी। और रागी पवित्र आत्मा के लक्ष्य से तेरा एक ध्येय बांधना पड़ेगा कि अरागी पवित्र आत्मा के लक्ष्य राग द्वेष कषाय का नाश होता है, ऐसा जानना पड़ेगा। देहादि क्रिया का ममत्व और कर्तृत्व के त्याग में शुभ भाव होता है। हाँ, शुभ भाव होता है, मगर ये व्यवहार भूमिका है, मगर उसमें संतोष मानने की जरूरत नहीं है। सम्यक्त्व का लक्ष्य रखने का है और अल्टीमेटली तो सच्ची समझ करके आत्मा में रमणता करके आत्मा की अनुभूति करके मुझे आत्म ज्ञान करना है, सम्यक ज्ञान करना है, सम्यक दर्शन करना है, ये ध्येय मेरा है, यहाँ से मुझे चुकना नहीं है। इस तरह से बहुत अच्छी तरह से श्रीमद जी हमको धीरे, देखो वो हमको लॉलीपॉप दे के हमको आगे बढ़ाते हैं, बट धीरे धीरे देख बेटा, ये लॉलीपॉप तो तुझे अंदर आने के लिए बताई थी। अभी जो तू अंदर आ गया है ना, तो अभी तुझे काम करना पड़ेगा। तुझे ऐसे का आत्मा की प्राप्ति नहीं होने वाली है, तुझे अपना कार्य करना पड़ेगा। वो रास्ता हमको दिखाते हैं। उन्होंने रास्ता का अनुभव किया है, तो वो हमको रास्ता का अपनी अनुभूति से रास्ता की सच्चे रास्ते की बात करते हैं। तो ऐसे महापुरुषों के पवित्र ज्ञान में से हम भी ज्ञान लेकर हम भी हमारे आत्मा में स्थिर हो जाए, आत्मज्ञान की प्राप्ति कर ले। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर विराम लेते हैं। कोई प्रश्न होता है तो लेते हैं। कोई भी आपको प्रश्न होता है तो ले लो, अदरवाइज जस्ट क्लोजिंग। ओके, ऑलराइट। तो यहाँ पर हम विराम लेते हैं। चलो। जी स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सदगुरु भगवन। परम पुरुष प्रभु सदगुरु परम ज्ञान सुखदाम, जेने आप्यो बान नीज तेने सदा प्रणाम। देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती, ते ज्ञानी ना चरण हो वंदन अगणी, ते ज्ञानी ना चरण हो वंदन अगणी। जावाणी के ज्ञान से जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बच्चा ने। Bye. Thank you. जय जिनेन्द्र।